Hello student, how are you? I hope you all are fine and stay home and safe. Today we will discuss Human Eye and Colorful Words chapters part 2. In first chapter we will discuss the structure of human eye and parts, different parts working of the human eye and defect in vision and its correction. Okay, then first part of human eye, this is the already discussed, and second part is the color forward. In this part we will discuss about the refraction of prism and atmospheric reflection and some other applications of these reflection phenomena in due to atmosphere and the prism. Let's in today class we will discuss some topics, that is first one is refraction of light through a glass prism, second one is dispersion of white light, and third is recombination of white light, and fourth is the rainbow and some applications which is based on the refraction phenomena and scattering or dispersion of white light. Okay, let's we start your first topic, that is refraction of light through glass prism. Okay, so first when we taught you the chapter light, we already discussed some introductory part of the refraction of light. What is refraction, refractive index, and refraction phenomena through a rectangular glass slab and lateral shift you will already discussed, and I hope you will remember that topics. So the first comes questions, what is the prism? The prism is a transparent refractive medium bounded by at least two lateral surfaces inclined to each other at a certain angle. Means आपका जो प्रिज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है. ट्रांसपेरेंट मीन्स द लाइट थ्रो आउट विल कम्स आउट फ्रॉम वन रिफ्रैक्टिव मीडियम्स टू द सेकेंड रिफ्रैक्टिव मीडियम्स. ओके, मीन्स एक पार्ट से सेकेंड पार्ट में जो बॉडी आपकी लाइट का ट्रेवल कर रही है बॉडी में, तो वो आपकी जो बॉडी होगी वो आपका जो मीडियम होगा वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा. ठीक है, ये आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक, तो जो आपका प्रिज्म होता है वो टू ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम से बाउंडेड होता है और उसमें दो लेटरल सरफेस होते हैं और वो एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं एक सर्टेन एंगल पे. ठीक है, अब देखते हैं फिगर ऑफ द प्रिज्म. ठीक, तो आपका जो ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म का डिस्कशन है, इसमें आप यूज करेंगे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का. ठीक है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो है ये भी एक टाइप का प्रिज्म है जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम के बाउंड्री से सरफेस से बना होगा. उसमें हम ये देखते हैं कि ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इसका नेम क्यों है. ठीक है, तो इसके जो सरफेस आप यूज करते हैं उस सरफेस में आप टू ट्रायंगुलर बेस यूज करते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस यूज करते हैं. ठीक है, ये देखिए फिगर, this is the triangular glass prism. Triangular glass prism, here already two triangular bases. Triangular bases mean this base, this is in triangular shape, and this side of base is also in triangular shape. ठीक है, तो ये आपके दो ट्रायंगुलर शेप हो गए एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस ये देखिए, ये फर्स्ट आपका रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, इसके जस्ट बैक साइड में ये सेकेंड लेटरल सरफेस और जस्ट इसके बॉटम साइड में आपका जो लोअर पार्ट होगा वो भी आपका रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होगा. ठीक है, तो आपका ये जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आपके थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस, ये फर्स्ट और इसके बिहाइंड सेकेंड और लोअर वाला थर्ड, और टू ट्रायंगुलर बेस ये
ये फर्स्ट बेस ट्रायंगुलर और ये सेकंड बेस ट्रायंगुलर, तो ये आपका ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म होगा। इसके थ्रू आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखना है, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का? 3 surfaces are inclined to each other, means ये देखिए फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस will incline to each other, ये देखिए यहाँ पे inclined है। This surface and this surface means already 3 surfaces are inclined to each other one by one, ठीक है। Next, the angle between 2 lateral faces is called the angle of prism. Angle of lateral faces means आपका ये एक lateral face हो गया, ये आपका second lateral face हो गया, means ये जो angle का formation होगा ये angle आपका क्या होगा? angle of prism होगा। यहाँ पे angle of prism होगा, ये angle of prism होगा, means किसी भी 2 lateral surface का जो जहाँ पे आपके कॉर्नर पॉइंट होंगे वहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। I hope you will able to understand. Next, refraction of light through glass prism. अब देखिए ये हम एक पार्ट यूज कर रहे हैं, ये ट्रायंगुलर पार्ट उस ग्लास प्रिज्म का, और इस ग्लास प्रिज्म में एक्चुअली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या हो रहा है अभी इसमें आपको यूज करना है। जब आपने लाइट के चैप्टर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, कर रखा है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, वो फिनोमेना यहाँ पे यूज होगा। उसके आपने कैसे एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता था, तो वो फिनोमेना यहाँ पे यूज हो रहा, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का एक ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर सरफेस। ये लाइट आपकी जो PQ है ये आपकी इंसिडेंट रे है, सॉरी PE जो है वो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये देखिए हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, PE आपकी इंसिडेंट हुई इस सरफेस AB पे। सरफेस AB पे ये आपका क्या है MN डैश जो है ये आपका नॉर्मल पॉइंट है एट द इंसिडेंट पॉइंट E पे, ठीक। आपकी लाइट इंसिडेंट हुई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है। ग्लास है और ये एयर है, तो glass behave as like a rare denser medium in comparison to the air. So when light will enter from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. तो ये देखिए इसकी जो ओरिजिनल पाथ था लाइट रे PE का, ये आपका ये डॉटेड पाथ है, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके एक ग्लास के अंदर जो ट्रेवल कर रही है वो ट्रेवल कर रही है EF, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने एक M डैश नॉर्मल पॉइंट ले रखा है, ठीक। और यहाँ से फिर ये लाइट रे इमर्जेंट हो रही है, मींस आउटसाइड में पास हो रही है, और ये मीडियम जो आपका होगा वो ऑलरेडी होगा एयर, और एयर मीडियम इन कंपैरिजन टू ग्लास बिहेव करेगा एज लाइक ए रेयर मीडियम, एंड इन व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट विल बी रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन यहाँ कहीं होती है, बट ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आपकी जो रेज होगी वो आपकी होगी FS। दिस रे इज नोन एज द इमर्जेंट रे, मींस PE दिस रे इज द इंसिडेंट रे, EF दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड FS दिस इज द इमर्जेंट रे, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि 2 सरफेस जहाँ पे इंक्लाइंड होते हैं वो इंक्लाइंड एंगल जो आपका होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो ये देखिए एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, तो ए जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंगल ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आई। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। and angle between emergent ray and the normal, this is known as the angle of emergence, this is represented by the angle E. And last point there here written as angle D, this is known as the angle of deviation. What is the angle of deviation? First we know where is forms, ठीक। तो देखिए आपने इंसिडेंट रे को डॉटेड आगे बढ़ा रखा है फॉरवर्ड साइड में, और ये FS को आपने बैकवर्ड साइड में डॉटेड ट्रेस किया। तो जहां पे ये आपकी डॉटेड लाइन कट कर रही हैं, मींस इंसिडेंट रे और एंगल इमर्जेंट रे जहां पे आपका कट किया, वो जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो को रिप्रेजेंट करेंगे D से, और ये एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। डेविएशन मींस
कितनी लाइट आपकी डेविएट हो रही है, मीन्स आपके पाथ में कितना डेविएशन आ रहा है, वो एंगल ऑफ डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा थ्रू द रिफ्लेक्शन बाय द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन? एंड दिस इट इज द एंगल एट विच इज मेड बाय इमर्जेंट रे विद द इंसिडेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के हेल्प से जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो एंगल आपका होता है एंगल ऑफ deviation. And what is the formula for this? It is depends upon the angle of prism, angle of incident and angle of emergent. This is equal to angle D is equal to angle I plus angle E minus times of angle A. I is incident angle, E is emergent angle and A is the angle of prism. Clear? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, बाकी ऑलरेडी जो भी टॉपिक आपके ये हैं ये आपने ऑलरेडी लाइट के चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो व्हाइट लाइट मीन्स एज लाइक ए सनलाइट, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स ऑफ ए लाइट। ठीक है, तो व्हाट इज डिस्पर्सन? क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज डिस्पर्सन? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड द डिस्पर्सन। मींस जब आपकी कोई भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास हो तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में स्प्लिट हो जाए, स्कैटरिंग उसका फिनोमेना हो जाए। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो होता है वो फिनोमेना आपका होता है डिस्पर्सन। ठीक है गाइस, डिस्पर्सन को आप स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके हम अभी बेसिक एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में आप जो देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में भी हम अभी डिस्कस करते हैं लेटर। तो फर्स्ट आपको ये जानना है कि ये डिस्पर्सन क्या होता है। तो डिस्पर्सन व्हाइट लाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स का स्प्लिट होना जब ये किसी प्रिज्म पे फॉल होती है उसके थ्रू, तो ये दिस फिनोमेना इज नोन एज द डिस्पर्सन। दिस इज द pictorial view which represents the dispersion of white light by a glass prism. This is your glass prism and this is the white light or sunlight incident on the surface, this surface of the prism, and it will be splits in their constituent colors. These colors are 7 colors, means your white light is the combination of 7 colors. First is red, second one is orange, third is yellow, fourth is green, then blue, then indigo and then violet. This phenomena first times Isaac Newton will used a glass prism to obtain this spectrum. Means Isaac Newton एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया ग्लास प्रिज्म का ऑब्टेन करने के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? दिस 7 कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लिट्स लाइट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। गाइस, ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? दे मींस दिस 7 combinations of white lights after the dispersion is known as the spectrum of white light or spectrum of the light. ठीक है, next this is already dispersion of white light through a glass prism and in short form it known as the Wigmore. ठीक है, red is represented by capital R, O, orange is O, yellow is Y, green is Z, blue is B, indigo is I and violet is V. Then you will learn this Wigmore. ठीक है, ये आप सिम्टम्स के यूज होता है कि Wigmore के थ्रू भी आप इस 7 सेगमेंट को याद कर सकते हैं। तो Wigmore, V स्टैंड फॉर वायलेट, I इज इंडिगो और B इज ब्लू, G इज ग्रीन, Y इज येलो, O इज ऑरेंज एंड रेड इज R। ठीक है, अब देखिए आप यूज कर रहे हैं Wigmore मीन्स लोअर साइड से आप इसको रीड कर रहे हैं और आपका फॉर्मेशन
फर्स्ट क्या है रेड, तो आप लिख के जो याद करेंगे विबग्योर, बट आर वाला जो होगा वो फर्स्ट होगा, मींस स्पेक्ट्रम का आपका फर्स्ट लाइट का कलर्स जो होगा वो रेड होगा। देन भाई आप ऐसे आप वॉलेट तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। आप एग्जाम में सपोज दैट पूछा जाता तो आपको विबग्योर कंफर्म है तो आप ये इस कलर से असेंडिंग ऑर्डर में मत लिखिएगा कि फर्स्ट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना, आपको ऑलरेडी ये मेंशन करना है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉलेट, ठीक है। विबग्योर का जस्ट अपोजिट आप यूज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज cause of dispersion, why dispersion, what is the reason behind the dispersion? Guys, you are already know the speed of light in air or vacuum is constant for all colors, but in different colors it will travels with different speed and bend through the different angle, ठीक है। बेंडिंग का फिनोमेना ही आपका हो रहा है। आप अगर यहाँ देखिए, ये देखिए आपकी लाइट जो थी वो क्या हो रही, बेंड हो रही, मीन्स रिफ्रैक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्ट होकर ये क्या हो रही, डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, उसके थ्रू ये डिफ्रैक्ट हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है, ठीक है। तो उसी का कॉज ये आपका जो डिस्पर्सन का फिनोमेना है वो उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि लाइट आपकी जो होती है वो एयर और वैक्यूम में एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, बट अगर आपका मीडियम डिफरेंट है तो उस डिफरेंट मीडियम में आपकी जो लाइट होगी उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, और स्पीड डिफरेंट होगी तो वो डिफरेंट एंगल से बेंड होगी, और ये बेंडिंग का फिनोमेना जो होता है वो लीड करता है आपके डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। और फर्स्ट डिस्पर्सन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का फर्स्ट कलर जो आपका है वो रेड लाइट है, and this is the important point. Red light has the maximum wavelength and white light has a minimum wavelength. Guys, आपने देखा होगा जो बड़ी सी बिल्डिंग्स होती हैं आपके शहरों में, या आपके जो टावर्स होते हैं, या आपके जो प्लेन्स वगैरह में सिग्नल दिया जाता है, या आप देखिए ट्रेन का जो क्रॉसिंग होती है वहाँ पे रेड सिग्नल आपको दिया जाता है। वो रेड सिग्नल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेवलेंथ होने की वजह से वो लाइट जो होती है वो डेविएशन उसका जो होता है, डिस्पर्सन जो होता है वो मिनिमम होता है, मींस आपकी लाइट डेविएट नहीं होगी तो आप उसको दूर से ही देख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से रेड लाइट का यूज आपके सिग्नल्स के में यूज होता है, और रेड लाइट का उसके पीछे रीजन क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी होती है रेड लाइट की, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो मिनिमम आपका डेविएशन होगा, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन होगा तो आपकी जो आप लाइट रेड लाइट होगी उसको आप बहुत दूर से ही आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके टावर्स जो होते हैं उसमें रेड लाइट का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी प्लेन ऊपर से जा रहा है वो दिखाई दे उसको कि रेड लाइट नीचे है, वो डेंजरस जोन में है। ट्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं उसमें भी रेड लाइट का यूज़ होता है, तो रेड लाइट वो उसका रीज़न यही है कि वेवलेंथ मैक्सिमम एंड डेविएशन मिनिमम। एंड वाइट लाइट just opposite, white lights have a minimum wavelength and maximum deviation, ठीक है। So the formula comes, wavelength is directly proportional to the velocity and is inversely proportional to the deviation, ठीक है। wavelength जो होता है वो velocity के directly proportional होगा, means maximum velocity maximum wavelength, velocity is maximum, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ मींस वेलोसिटी इज मिनिमम। अब सपोज अब आपसे ये कंपैरिजन किया जाए रेड और वाइट का, उस मैक्सिमम वेवलेंथ आपका जो है वो रेड का है, मिनिमम जो है वो आपका वॉलेट का है, तो वेवलेंथ अगर आपकी रेड की मैक्सिमम है तो उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और डेविएशन उसका क्या होगा, मिनिमम होगा। एंड वॉलेट का जो आपका वेवलेंथ है दिस इज द मिनिमम, देन वेलोसिटी इज मिनिमम एंड डेविएशन इज मैक्सिमम, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये आपको हेल्प करेगा। और किसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और उसका क्या इफेक्ट है, क्यों हम रेड लाइट का यूज करते हैं, इसके पीछे रीजन जो है वो ये इस फार्मूले से क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। देन द नेक्स्ट रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अभी तो आपने व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे इंटर कराया और वो प्रिज्म पे इंटर की तो
स्प्लिट हो गई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में, ठीक है, 7 कलर्स में। बट अब आपको रिकम्बाइन करना है, मीन्स आपको व्हाइट लाइट को स्प्लिट करना है, फिर स्प्लिट लाइट से आपको व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये क्या काम है, देखिए यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, वी विल यूज टू प्रिज्म, वन इज इरेक्ट एंड सेकेंड वन इज इन्वर्टेड। In erect image, when we incident a white light, it will split in your constituent 7 colors, that is Vibgyor's, and this split colors will also incident again on a inverted glass prism, ठीक है। ये आपका inverted glass prism है और यहाँ पे 7 कलर्स आपके स्प्लिट हो रहे हैं, वो इंसिडेंट हो रहे हैं। तो मीन्स ये 7 कलर्स इस प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म के लिए क्या होंगे, इंसिडेंट लाइट होंगे। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल प्रोड्यूस ए व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, कंबाइन कर दे रहा है सबको, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपकी जो ग्लास एक्चुअली हो क्या रहा है ये भी तो आपको जानना होगा। इस व्हाइट लाइट में यहाँ पे क्या था, रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम, तो यहाँ से कुछ स्प्लिट हुई, थोड़ा सा डेविएट हुई अपने नॉर्मल पॉइंट से, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर ये डेंसर मीडियम से फिर ये आ रही है रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम में आएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होंगे, मीन्स ये इनका स्प्लिट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पूरे स्पेक्ट्रम को फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम इस इन्वर्टेड प्रिज्म के इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, दिस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो ये आपका अब बिहेव कर रहा है क्या, रेयर मीडियम, एंड दिस ग्लास इज बिहेव लाइक ए डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में आपका आएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा तो ये अब क्या होंगी, कंबाइन होंगी, कंप्रेस होंगी, और कंप्रेस होंगी तो जब इस पॉइंट पे आएंगी तो ये कंप्रेस होंगे एज लाइक एक सिंपल व्हाइट लाइट, एक सिंपल कलर की लाइट को प्रोड्यूस करेंगी, सिंगल कलर की लाइट को प्रोड्यूस करेंगी। तो ये फिर जब इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मींस इस एयर में आएंगे, तो ये एयर में आएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो वो एक सिंगल लाइट कलर्स होगी, वो लाइट आपकी क्या होगी, व्हाइट लाइट एज लाइक ए सनलाइट होगा, ठीक है। तो मींस आपको रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट में यूज करना है दो प्रिज्म, फर्स्ट वन इज द erect and second one is the inverted. Guys, one important point, if a similar band of 7 colors is produced when a beam of white light from a electric bulb falls on a triangular glass prism, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से आप व्हाइट लाइट का एक बीम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहां से भी आप ट्रायंगुलर प्रिज्म पे 7 सेगमेंट को देख सकते हैं। ये आपने देखा भी होगा, कोई भी प्रिज्म आप लेके आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली अपने घर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक का आपका जो है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये फिनोमेना जो अब हम लेटर डिस्कस करने चल रहे हैं, ये फिनोमेना ऑलरेडी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए फर्स्ट इमेज को आप ध्यान से देखिए, दिस इमेज, दिस इज द फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट में आपकी ट्रीज होंगी, वो जो होगा उनकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये आपका जो एक स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर आपका जो होगा वो इस तरीके से जब इस पे सनलाइट इंसिडेंट होती है तो ये सनलाइट जो होगी वो स्कैटर्ड हो जाएंगी जब ये इस फॉरेस्ट में इंटर करेंगे थ्रू द गैपिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है। तो उसका इनका जो स्प्लिट का फिनोमेना होता है सनलाइट का, ये देखिए ये इस तरीके से होता है, और ये आपका है कलरफुल वर्ड, जो आपका चैप्टर का नेम है कलरफुल वर्ड। दिस फिनोमेना एंड दिस फिगर्स इन योर डेली लाइफ इज नोन, इट डिफाइंड और इट शोज the colorful word. What is the colorful word? These figures already shows, and you will see second figure, this is already scattering of sunlight passing through the canopy. This word where we use canopy, canopy means as like a umbrella, ठीक है, मीन्स छतरी जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें होल्स हैं, जो पत्तियां आपकी होती हैं वो एक छतरी के तरीके से ही बिहेव करती हैं। तो उसमें जो आपकी होल्स है उससे जो आपका सनलाइट पास हो रहा है वो स्प्लिट हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो वो एक नेचुरल व्यू को, ब्यूटीफुल व्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप देखते हैं और अपने आप सेल्फी भी लेते हैं उसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप उसके अपने मोबाइल्स के वॉलपेपर में यूज़ करते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स पे आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल था स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का और डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। यहाँ पर भी आपकी लाइट जो आ रही है वो स्प्लिट हो रही है। अब ये लाइट आपकी सनलाइट है, इस सनलाइट में भी आपको 7 सेगमेंट्स जो आपके 7
कलर्स का स्पेक्ट्रम फाइंड आउट आपने किया थ्रू द प्रिज्म। ये भी आपको यहाँ पर भी मिलता है, आप ये देख सकते हैं अपने नॉर्मल आई से, ठीक है। ये व्यू आजकल आप देख रहे होंगे, जब लाइट जब शाम होती है बारिश के मौसम में, तो लाइट जब आपका सन सेट होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका ये व्यू आपको मिलता है। ये भी फिनोमेना आपका जो डिपेंड कर रहा है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, ब्लू स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। ये भी आपका स्कैटरिंग का फिनोमेना है। जब आपका सनसेट हो या सनराइज हो तो उस टाइम पे आपकी जो तो सन जब आपका सेट होता है या सनराइज होता है तो उस टाइम पे आपकी जो सन की लाइट्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे कि ये रीज़न क्या है इसके पीछे, कि आपकी जो स्काई होती है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, सनसेट स्प्रेड क्यों होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। गाइस, रेनबो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आजकल के मौसम में जो जैसा कि बारिश का मौसम है उस मौसम में आपको दिखाई देता है, और इसका फॉर्मेशन ये एक आर्क का एक कलर स्पेक्ट्रम आर्क के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट होता है, ठीक है। जिस आप डायरेक्शन में आपकी सनलाइट आ रही होगी, मीन्स सन आपका होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, क्यों फॉर्मेशन इसका होता है, रेनबो क्या होता है, तो इसका हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज द फिगर, और ये रेनिंग टाइम में ही होता है, ठीक है। तो रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rainsover, and this formation is the cause of dispersion of sunlight by tiny water droplets, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का फिनोमेना इसमें होता है, और ये जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, टीनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं, ये देखिए आपको शो कर रहा है ये वाटर ड्रॉप्स, और इस वाटर ड्रॉप्स पे जब ये सनलाइट इंसिडेंट होती है तो ये वाटर ड्रॉप्स आपका जो होता है वो बिहेव करता है एज लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, ठीक है। और ये स्मॉल प्रिज्म जब बिहेव करेगा तो इस पर जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, तो प्रिज्म का क्या है कि जब सनलाइट इंसिडेंट होगी तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ये स्प्लिट होगा, तो ये फॉर्मेशन देगा क्या, 7 कलर्स बैंड, 7 कलर्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। और वो एक आर्क के फॉर्म में फॉर्म होता है, और वो आर्क के फॉर्म में फॉर्म होने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, रेनबो, ठीक है। आपने धनुष को देखा होगा, वो धनुष का आकार जो होता है वो उसके आकार के होने की वजह से आर्क के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये और इसका जो है ये फॉर्मेशन जो है ये स्काई में फॉर्मेशन होगा, और जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में आपका सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है रेनबो के फॉर्मेशन में, ठीक है, इसका हम डिस्कस करते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। चलिए ये देखिए क्या है, ये आपकी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स हैं इन द स्काई, ठीक है। ये आपकी सनलाइट है, ये सनलाइट आपकी इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे। अब ये टिनी वाटर ड्रॉप्स जो आपका है ये बिहेव कर रहा है एज लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। तो स्मॉल प्रिज्म ये इस पे इंसिडेंट हुआ तो ये इसमें क्या हुआ, यहाँ से तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ, बस इट्स सरफेस पे जब आपकी आएगी तो इसके सम पार्ट्स विल बी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और सम पार्ट इसके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए 2 टाइम्स इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और ये जब आउटसाइड जा रही तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, और 1 टाइम्स इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्टेड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द टिनी ड्रॉप ऑफ द वाटर एज लाइक ए स्मॉल प्रिज्म. It will be split in 7 segments of the colors of white light, and this colors of white light is dispersed
it appears in the sky in the form of arc, and this arc is known as the rainbow. This is the process of formation of the rainbow. ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो. ठीक है, दिस इज, thank you guys, and I hope you will enjoy the video. If you have any problem, any doubt, you will comment on the comment section and ask your problem and clear your doubt, and also revise this topic. And next video we will discuss the atmospheric refraction and phenomena based on the atmospheric refraction and scattering of the light. ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं. इसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए. थैंक यू गाइस, गुड लक.